suppose for example if I go from here, okay, suppose for example if I go from here up to here, okay, I have traveled 10 meter and I have traveled it in 5 seconds. Suppose 2 meter is covered in 1 second, okay, not here 2 meter is covered in 1 second, again 2 meter is covered in 1 second, again 2 meter is covered in 1 second, again 2 meter is covered in 1 second, and again 2 meter is covered in 1 second. So this you know that 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2, 10 meter is covered in 5 seconds. Okay, so 2 meter per second is the average velocity, total by total time. Okay, now the fact is this, that when the car moves or the object moves in this way, it is moving in this direction, right? It is moving in a particular direction. So in each of the case, if you consider from here to here to be the displacement, if you consider the here to be here be the displacement, okay, if the displacement is this, then in each of the instantaneous displacements or small displacements are also in same direction. So that means the average velocity, if I consider velocity, that is displacement by time, displacement is denoted by s, average velocity if total displacement by total time, ठीक है, then total displacement is 10 by 5, 2 meter per second. It is clear that average velocity is 2 meter per second, and the average speeds, you see, average instantaneous velocities is also 2 meter per second, but the direction of the instantaneous velocity is also same. So when the direction remains same, we can say that the displacement or the velocity is uniform. Like, you will understand this better with the extension of the example. Suppose the same is done in this way. Suppose a body has traveled 2 meter in 1 second, 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 2 meter in 1 second. Here, from here to here, the displacement, 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 here to here, the displacement is not same. Why the displacement is not same? 2 meter displacement in each of the case, that I agree, but the displacement is not same. Why? Because in each of the cases its direction is changing. So I can say that its average speed is same, but average instantaneous speed, instant speed is same. I can say instant speed is same, but I cannot say that instant velocity is same. Because for the instant velocity to be same, there should be same direction at every instance. But here the speed is same, 2 meter per second, 2 meter per second, 2 meter per second, 2 meter per second, 2 meter per second. Okay, the instantaneous speed is same. The average speed is also same, 10 meter by 5 seconds. Because 10 meter is the total distance, okay, by 5 seconds. But if you see, the velocity is not same, because in each of the cases the direction is changing, and velocity is a vector quantity which involves direction in it, not only just the measurement. Okay, so that's why you can call it instant speed is same, but you cannot call it instant velocity is same. Cannot say instant velocity is same. So I can say this as uniform speed but not uniform velocity. I can say it as uniform speed but not uniform velocity. From the previous video, I'll just recapitulate. What do we learn? That if the journey is such, or if the object is moving in such a path that the displacement is constant, in the same direction at each small intervals also. If the displacements are at same direction at each instance, if the displacements are at same direction at each instance, then the velocities will also be at same direction. Now if the value of the velocities or the instant velocities is same, suppose for example, like the previous example, 10 meter in 5 seconds. So in each 1 second, if it goes 2 meter, 1 second में 2 meter, 1 second में 1 second में 2 meter. Okay, so 1 2 3 4 एंड अगेन 1 सेकेंड में 2 मीटर. तो इतना छोड़ दो, यहाँ से यहाँ तक ही पकड़ो. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेम डिस्टेंस में जा रहा है.
आई मीन सॉरी, मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहा है, नॉट डिस्टेंस में, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है और वैल्यू भी हर एक इंस्टेंट में सेम है, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसको आप बोल सकते हो कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, क्योंकि आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम है। लेकिन अगर ऐसा है कि ऐसे जा रहा है, ऐसे यहाँ से गया, लेकिन यहाँ पे 2 मीटर इन 1 सेकेंड, यहाँ पे 2 मीटर इन 1 सेकेंड, यहाँ पे 3 मीटर इन 1 सेकेंड, यहाँ पे 2 मीटर इन 5 सेकेंड्स। तो यहाँ पे डायरेक्शन तो सेम है, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन टू सेम है, लेकिन डायरेक्शन सेम है ये सही बात है, लेकिन हर एक इंस्टेंट में वैल्यू सेम नहीं है। सेम है नहीं, 2 इंस्टेंट में सेम होने से नहीं चलेगा, हर इंस्टेंट में वैल्यू अलग अलग वैल्यू आ रहा है। तो इसका मतलब वैल्यू अलग है, तब भी आप नहीं बोल सकते कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, क्योंकि यूनिफॉर्म अगर वेलोसिटी बनना है, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी बनना है तो ईच इंस्टेंट में डायरेक्शन भी सेम रहना पड़ेगा, डायरेक्शन भी सेम रहना पड़ेगा और मैग्नीट्यूड भी सेम रहना पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि इस वाले में है, लेकिन ये वाला में नहीं होगा, और इस वाले में जैसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है, 2 मीटर पर सेकेंड, 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 लेकिन डायरेक्शन हर एक इंस्टेंट में सेम नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी बनने के लिए ईच इंस्टेंट में सेम वेलोसिटी होना पड़ेगा, और सेम वेलोसिटी होने के लिए खाली मैग्नीट्यूड सेम होने से नहीं चलेगा, डायरेक्शन भी सेम होना पड़ेगा। हाँ, अगर आप स्पीड का बात कर रहे हो खाली, तो खाली मैग्नीट्यूड लेने से चलेगा, जैसे यहाँ पे आप यूनिफॉर्म स्पीड बोल सकते हो, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड नापा गया है, तो वो अलग बात है, लेकिन ये अलग बात है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, टेल मी यू हैव अंडरस्टूड और नॉट। तो हम लोग का अगर जिस्ट किया जाए कि हम लोगों ने अभी अभी क्या पढ़ा, हम लोगों ने ये पढ़ा कि यूनिफॉर्म स्पीड कब बोला जाता है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब बोला जाता है, ठीक है, ये चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने ये पढ़ा, हम लोगों को पता है कि अगर यूनिफॉर्म होना है किसी भी चीज़ को, ठीक है, यूनिफॉर्म होना है किसी भी चीज़ को, अगर स्पीड को भी यूनिफॉर्म होना है या वेलोसिटी को भी यूनिफॉर्म होना है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो स्पीड के लिए इक्वल डिस्टेंसेस होना मांगता है, एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ऐसा होना मांगता है, ठीक है। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स होना मांगता है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स होना मांगता है एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल यूनिफॉर्म स्पीड, इक्वल में इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होना चाहिए, इक्वल डिस्प्लेसमेंट। अब इक्वल डिस्प्लेसमेंट ये बहुत बड़ा बात है। इक्वल डिस्प्लेसमेंट में मतलब खाली आपका यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट, फिर यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट, अगर ये 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, ये भी 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको आप इक्वल डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते, यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के डिस्प्लेसमेंट में और यहाँ से यहाँ तक के डिस्प्लेसमेंट में भले ही मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन अलग है, तो इसको आप इक्वल डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते। इसी वजह से जब एक गाड़ी मोशन में जा रहा है, इसी वजह से जब एक गाड़ी मोशन में जा रहा है तब वो ऐसे जाएगा कि हर एक इंस्टेंट में उसका वेलोसिटी सेम होना चाहिए, छोटे छोटे इंस्टेंट्स में, ठीक है। तो हर एक छोटे छोटे इंस्टेंट में उसका वेलोसिटी अगर सेम होगा, हर एक छोटे छोटे इंस्टेंट में उसका वेलोसिटी अगर सेम होगा, वेलोसिटी सेम होगा, तो हम लोग उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे, क्योंकि वो आपका बन जाता है इक्वल डिस्प्लेसमेंट एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। वो आपका बन जाता है इक्वल डिस्प्लेसमेंट एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन इक्वल डिस्प्लेसमेंट तभी बनेगा जब डायरेक्शन सेम रहेगा और मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। मतलब हर एक वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड नहीं होगा। यहाँ पे डायरेक्शन सेम है, लेकिन क्योंकि इसका वो जो बात है आपका जो हर एक इंस्टेंट में मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं हो पाएगा। तो जब हम लोग ये बात करते हैं तब हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं तो ये नॉन यूनिफॉर्म बन गया, बना कि नहीं, नॉन यूनिफॉर्म बन गया।
क्यों सर? सर डायरेक्शन सेम है फिर भी, लेकिन हर एक इंस्टेंट में सेम नहीं है, तो नॉन यूनिफॉर्म बन गया, मतलब अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट हो गया, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट हो गया एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्यों सर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट हो गया? क्योंकि मैं यहाँ पे सेम नहीं हुआ ना आपका जो यहाँ पे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर या 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, या इक्वल डिस्प्लेसमेंट हुआ भी होगा तो अनइक्वल इंटरवल्स में ऑफ टाइम में हुआ होगा। तो ये सब बातों के लिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम नहीं रहा। राइट और रॉन्ग? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या नहीं रहा? सेम नहीं रहा। तो इस वजह से ये नॉन यूनिफॉर्म बन गया सेम डायरेक्शन में रहते हुए। तो यूनिफॉर्म खाली तब ही बन सकता है जब सेम डायरेक्शन में भी जाए, ठीक है, और क्या हो, हर एक इंटरवल में मैग्नीट्यूड भी सेम रहे। लेकिन अगर सर ऐसा गया और हर एक इंटरवल में अगर मुझे को वैल्यू सेम मिला, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम मिला, मैग्नीट्यूड मतलब खाली स्पीड, तो हर एक इंटरवल में आपको स्पीड सेम मिल रहा है लेकिन डायरेक्शन आपका डायग्राम में अच्छे से दिख रहा है कि सेम नहीं है, तो इसको नॉन यूनिफॉर्म ही बोलेंगे। चाहे वो यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड या 2 मीटर पर सेकेंड रहे, चाहे वो रहे, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, तो इसको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बुलाएंगे। खाली डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन भी सेम और वेलोसिटी भी सेम, तब 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड तब जाके हमारा बनता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, नाउ द क्वेश्चन कम्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सपोज दिस इज अ circularly a body moves. If a body moves circularly, ठीक है, if a body moves circularly, in every moment its direction is changing, so it can never be uniform velocity. Even if at every instant it is going, okay, at every instant it is going equal value at equal interval of time, that will be equal distance but not displacement. Why? Because at every instant the direction is changing. So even if the instantaneous value is same, you can say that it is uniform. We can say that it is uniform, what we can say, you can say it is uniform speed but not velocity. Even if equal gap is there, at equal interval of time they are covering the gap, but still you cannot call it uniform velocity just because direction is changing at every moment in a circular motion. So in a circular motion, uniform speed is possible, but no uniform velocity. Why? Because always the direction keeps on changing. Okay, but then again, if in a circular motion they go unequal distances at unequal intervals of time, maybe then it will not be uniform speed also. Uniform speed जो होना ही पड़ेगा ऐसा बात नहीं, लेकिन uniform speed possible है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में भी जा सकता है, लेकिन हाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर इक्वल इंटरवल में भी जा रहा है तो यूनिफॉर्म स्पीड भी बन जाए, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमेशा डायरेक्शन चेंज होता है. फॉर दोज हु आर स्टिल थिंकिंग हाउ टू सॉल्व द अबव given picture, I'll show you how to solve it. Just hold on. Yeah, let me show you. See, 1.5 meter in 1 second, 1.5 meter in 1 second, 1.5 meter in 1 second, 1.5 meter in 0.3 seconds, 1.5 meter in 0.7 second, 1.5 meter in 1 second. So at equal intervals of distances at unequal intervals of time, so uniform speed तो होगा ही नहीं. Equal intervals, and if I say displacements, so that means in each instant the speed is only not same. The speed is only not same at each instant, right or wrong? So if the speed is only not same, velocity cannot be same, because the magnitude of speed will come in the magnitude of velocity only. But however, the direction is same, but in each instant the value is not same of the velocity, because here the value will be different, here the value will be different. So it is not uniform velocity also. So it should be number A, neither uniform velocity nor uniform speed. 1 meter in 1 second, 2 meter in 1 second, 3 meter per second, 4 meter per second. 1 meter
per second, 2 meter per second, 3 meter per second, 4 meter per second. So in this case what is happening is unequal distances at equal intervals of time. So that means at each instant the speed and the value of the velocity or magnitude of the velocity is different. The speed is different at each instant, the magnitude of the velocity is also different at each instant. So that means that it is non-uniform speed and velocity both. डायरेक्शन सेम रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो हर एक इंस्टेंट में बदल रहा है, ठीक है. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये भी नंबर बी होगा, नाइदर यूनिफॉर्म वेलोसिटी नॉर यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी नहीं हो रहा है, स्पीड भी नहीं हो रहा है. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन सेम है और हर एक इंस्टेंट में 2 मीटर पर सेकंड, 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 हर एक इंस्टेंट में 2 मीटर पर सेकंड होता है. तो इसके वजह से ये क्या हो जाएगा, बोथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म स्पीड होगा, ठीक है. और यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 मीटर इन 1 सेकेंड, मतलब 2 मीटर इन 1 सेकेंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड. तो यूनिफॉर्म स्पीड हो रहा है. क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ द स्पीड में खाली वैल्यू देखा जाता है, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है. ताकि वैल्यू ऑफ वेलोसिटी सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी नहीं सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है ही नहीं. वेलोसिटी को इक्वल होना मांगता है, मतलब डायरेक्शन भी इक्वल होगा. तो वेलोसिटीज आर एक्चुअली डिफरेंट बिकॉज द डायरेक्शन इज डिफरेंट. दैट्स वाई नॉट यूनिफॉर्म वेलोसिटी बट यूनिफॉर्म स्पीड. तो ये सी होगा, मतलब ये ए होगा, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा. ओके, एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन एक नया फिजिकल क्वांटिटी है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है. नया मतलब आप लोगों के लिए नया, ठीक है, आप लोगों का नया टॉपिक जो एक वेक्टर क्वांटिटी है. एक्सीलरेशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है. डिस्प्लेसमेंट का क्या था, सॉरी वेलोसिटी का क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना. वेलोसिटी का था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब आपका इनिशियल पॉइंट है, आप गए हो, ये एक फाइनल पॉइंट है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया. तो फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट, ठीक है. तो फाइनल पॉइंट से अगर इनिशियल पॉइंट को माइनस किया जाए तो जितना आपने ट्रैवल किया है वो आपका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो आपका है वो आपका डिस्प्लेसमेंट है. तो ये आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. क्यों? क्योंकि हमेशा रेट ऑफ चेंज टाइम से ही नापा जाता है, टाइम से डिवाइड करके. ठीक उसी तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब सोचो कोई, अब जब आप यहाँ पे जा रहे हो, ऐसे इसी को मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, जब आपने ऐसे यहाँ पे गया है, ठीक है, तब क्या आपने इक्वल डिस्प्लेसमेंट एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम कवर किया होगा, या हर वक्त इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम रखा होगा? नहीं ना, नहीं रखा होगा. जब आपने नहीं रखा होगा, जब आप यूनिफॉर्म मोशन में या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नहीं ट्रैवल कर रहे हो, जब आप नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ट्रैवल कर रहे हो, सोचो यहाँ से यहाँ तक आप नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ट्रैवल कर रहे हो, तो आपका पकड़ लो कि आपका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग. हाँ, ऐसा मैं आसान सा एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि गाड़ी खड़ा है, ठीक है, तो गाड़ी जो हमारा है वो रेस्ट में खड़ा है, तो उसका तब आप वेलोसिटी बोलोगे 0, ठीक है. वेलोसिटी क्या बोलोगे? 0 मीटर पर सेकेंड उसका वेलोसिटी बोलोगे. जब गाड़ी स्टार्ट देके यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, सोचो यहाँ तक आने में उसको 5 सेकेंड लगा, उसने 5 मीटर कवर किया गाड़ी स्टार्ट देके, लेकिन यहाँ से वो चले जा रहा है. लेकिन इस इंस्टेंट में जब आप वेलोसिटी नाप रहे हो तो आपका हो रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. आप गाड़ी जब यहाँ पे है, ठीक है, तो गाड़ी का वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब आपका एक इनिशियल वेलोसिटी बन गया u, आपका एक फाइनल वेलोसिटी बन गया v, है कि नहीं. तो अगर आपने इनिशियल वेलोसिटी से आप फाइनल वेलोसिटी देख रहे हो तो आपका वेलोसिटी इंक्रीज किया है गाड़ी स्टार्ट देके जब आप जा रहे हो, तो इसका मतलब वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो है ही, क्योंकि आपका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है. यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी नहीं बदलेगा, तो वेलोसिटी कभी इंक्रीज ही नहीं होगा, ठीक है. लेकिन यहाँ पे 0 से 5 तक इंक्रीज़ हुआ है, बाद में शायद 5 से वो थोड़ा और स्पीड बढ़ाया बाद में. नॉर्मली जब आप जर्नी करते हो तो ऐसा ही होता है ना, सोचो 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ा दिया, ठीक है. तो ये जो इंक्रीज़ हो रहा है वेलोसिटी में, इंक्रीज़ ऑफ वेलोसिटी कितना जल्दी हो रहा है, उस चीज़ को हम एक्सीलरेशन बोलते हैं, ठीक है. इतना तक समझो, फिर मैं और बताता हूँ. तो अब क्या हो रहा है, अब सोचो एक ऑब्जेक्ट, हाँ, अब क्या हो रहा है, अब सोचो एक ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है,
अभी आप खाली नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को लेके ही काम कर रहे हो, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ही एक्सीलरेशन पॉसिबल है। ये मैं बताता हूँ क्यों, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कभी एक्सीलरेशन पॉसिबल नहीं है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी हैज़ जीरो एक्सीलरेशन, ठीक है। तो वो एक बात है। तो एक्सीलरेशन मतलब क्या मैंने बताया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सोचो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से जा रहा है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, ये स्पीड बढ़ के जा रहा है, तो इसका मतलब उसका एक इनिशियल वेलोसिटी होगा। सोचो 2 मीटर पर सेकेंड, जब अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देखा था तो उसका वेलोसिटी था 2 मीटर पर सेकेंड। थोड़ी देर बाद, मतलब सोचो 5 सेकेंड बाद, उसका हो गया आपका 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड। मतलब उसने वेलोसिटी बढ़ाने में थोड़ा सा टाइम लगाया है ना, उसने वेलोसिटी बढ़ाने में थोड़ा टाइम लगाया है। इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी। एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, और कितने टाइम में चेंज, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, ये हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी u, ये हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी v। तो हम लोग लिखते हैं v माइनस यू बाई टी। क्या लिखते हैं, v माइनस यू बाई टी। तो जब v माइनस यू बाई टी लिखते हैं तो 12 माइनस 2 बाई 5। तो इसका मतलब 12 माइनस 2 मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड बाई 5 seconds, right or wrong? So it will be 2 meter per second square. Sir, why meter per second square? At first acceleration's value unit is चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी, तो यूनिट तो वेलोसिटी का ही रहेगा ना, तो मीटर पर सेकेंड रहा, और ये 5 सेकेंड्स में हो रहा है। तो एनीवे जब टाइम रहेगा तो नीचे टाइम में सेकेंड्स ही रहेगा। तो आपका क्या मिल रहा है, मीटर बाई सेकेंड इंटू 1 बाई सेकेंड, है ना। ये क्या होगा, मीटर बाई सेकेंड, ठीक है, और ये डिवाइड बाई सेकेंड बाई 1, तो मीटर बाई सेकेंड इंटू 1 बाई सेकेंड, तो क्या हो रहा है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लोग लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमेशा याद रखो एक्सीलरेशन का यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड व्हाट इज एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। ऐसे भी लिखते हैं बहुत कोई, a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी, या फिर फाइनल वेलोसिटी जर्नी का जो भी छोटा सा इंस्टेंट में आप देख रहे हो, जर्नी का भी फाइनल वेलोसिटी हो सकता है और छोटे से इंस्टेंट का भी फाइनल वेलोसिटी हो सकता है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, ये हो गया आपका एक्सीलरेशन। और एक एग्जांपल देता हूँ एक्सेलरेशन समझाने के लिए, थोड़ा फनी एग्जांपल देता हूँ। सोचो एक बाइक में, हाँ एक बाइक है, बाइक में ये बाइक से मयंक जा रहा है, ठीक है, मयंक बाइक से जा रहा है। तो यहाँ शर्मिष्ठा यहाँ पे देख रही है, ठीक है, कि मयंक बाइक से जा रहा है। मयंक का बाइक का स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मयंक जा रहा है, 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 जा रहा है। यहाँ पे फिर ने शर्मिष्ठा ने ये ऑब्जर्व किया कि मयंक का बाइक का स्पीड वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हुए जा रहा है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हुए जा रहा है, कॉन्टिन्यूसली मयंक का बाइक का वेलोसिटी क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। जब ये बात शर्मिष्ठा ने ऑब्जर्व की कि कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, बाइक का वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो दूसरे इंस्टेंट में उसने देखा कि ये 20 मीटर पर सेकेंड हो गया है। लेकिन वेलोसिटी बढ़ने में भी, वो तो अचानक से वेलोसिटी नहीं बढ़ा है ना, बढ़ने में भी थोड़ा सा टाइम लगा होगा। कितना टाइम लगा होगा, सोचो 10 सेकेंड टाइम लगा होगा। तो यानी फाइनल वेलोसिटी आपका हो गया v, इनिशियल वेलोसिटी u, तो v माइनस यू बाई 10 विच विल गिव यू 20 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड बाई 10 सेकेंड्स। सो 10 बाई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों ऐसा होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज अनदर एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सीलरेशन। ये एक्सीलरेशन हो रहा है। Actually, if uniform velocity is occurring, so that means in a straight direction, equal displacements are covered at equal intervals of time in a same direction. Okay, so that means what? That means that equal
displacements at equal interval of time, and at each instant, suppose if you measure the initial velocity here u, if you measure the final velocity here v, but as because it is uniform velocity, here also it is 5 meter per second, here also it will be 5 meter per second, because at every instant it will be 5 meter per second. So v minus u, so whatever is the time gap between these two velocities that you have measured, suppose it is 2 seconds, so but it will be 5 minus 5 by 2, so it will be 0 by 2. So acceleration will be 0, hence no acceleration in case of uniform velocity. But yes, if it is non-uniform velocity, acceleration will be there. Okay, common examples where acceleration, common examples of acceleration happening. Acceleration happening. Okay, suppose for example, when a car moves in a straight line, still if it increases its velocity, suppose a car is there, it starts and goes. When it starts, its initial velocity is 0 meter per second, and after some time its velocity will be something, v will be maybe 10 meter per second, and it will take a time to start from the starting velocity when the car starts with the key, and then it reaches some particular velocity, maybe 1 meter per second or something like that. Okay, it will take a time to do that. So that change in velocity 1 minus 0 by 2, that is acceleration. Okay, so always acceleration will be there when there is increase in velocity. Okay, uniform velocity mein nahi hoga. I hope you have understood that. So these are common examples. Suppose a football is going, okay, at uniform velocity. Abhiman came and kicked the football, the velocity increased. So from this point to this point there will be acceleration. Suppose it was going in 5 meter per second, it was going in, now it is going in 30 meter per second, and the time period to kick the ball or the increase the velocity was 2 seconds. So 30 minus 5 by 2 meter per second square, that is final velocity v minus initial velocity u, v minus u by t is equals to acceleration. Okay, so I hope that this you have understood. These are some common examples. Many examples are there. You will eventually understand that you have to notice that whether the velocity is increasing or not. Suppose a ball, when a ball falls from the up, okay, ऊपर से अगर एक बॉल नीचे की तरफ फेंकोगे तो बॉल जब नीचे गिरता है तो एक्सीलरेशन होते होते गिरता है. Okay, so I hope that you have understood.